शिप्स अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ यूएस के द्वारा भी रशिया के ऑयल को इंपोर्ट करने के लिए इंडिया को वेवर दिया जा चुका है। इस समय पर लिटरली जो वेस्टर्न मीडिया की हालत है, दे आर मेल्टिंग डाउन, दे आर क्राइंग आउट। आप लिटरली पहले इस वीडियो को देखो, दिस इज नॉट वन वीडियो, इस तरीके की कई सारी वीडियो अभी सोशल मीडिया पे आप लोगों को मिलेगी। But Derek, Iran has given approval to Indian government for 2 liquefied petroleum tankers to sail through the Strait of Hormuz. So we were just hearing that news in the last hour. How could this affect India's energy security and its diplomatic balancing act, of course, between the US on one side and Iran on the other? So I think it's definitely going to help India because they have this agreement now with Iran to have India flag ships go through unscathed. And by the way, it also helps India within its own region because some of the smaller countries like Sri Lanka and Maldives and one of the larger countries, Bangladesh, they are now looking to India to provide oil from the Strait of Hormuz since they themselves do not have a similar deal with Iran, at least not yet. Right, so this could actually strengthen India's hand within its own region, and I think that's a net plus for India. Also, keep in mind that the Trump administration has given a 30-day waiver for India to import Russian oil. Right, so India is looking pretty good in terms of the energy picture, but as you mentioned, diplomatically, this is a very, very delicate balancing act, far more delicate than anything I've seen India try in the past, although India is pretty well versed at being non-aligned and interacting with all sides in a conflict. So I think that they're in pretty good shape. But consider this, right? India has had several phone calls with Iran, has forged this deal on India flag shipping, but at the same time signed on to a resolution. I believe it was through the Gulf Cooperation Council, right, that condemned in the strongest terms possible Iran's retaliation for American and Israeli strikes. So how do you square that circle? How do you say Iran was wrong, but yet we're still going to be friendly with Iran and have this deal? It's very delicate. And of course, you have relations between India and the United States, right? And the fact that the U.S. wants India to do more with it, not just against China, but also now with Iran, right? And so how is that going to play out over the long term? It's very unclear. सो लिटरली यहाँ पर आप देखोगे जो वेस्टर्न मीडिया है ये कह रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत को परमिशन मिल गई, भारत ईरान से एक अच्छे रिलेशन रख रहा है, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल जबकि ईरान को क्रिटिसाइज कर रही है। सब जानते हैं ईरान गलत है, वो ईरान जिसके ऊपर ईरान, इजराइल और यूएस के द्वारा अटैक किया गया वो ईरान गलत है। इंडिया जो है ऐसे समय पर यूएस के साथ खड़ा रहे, ठीक वही यूएस जो कि थोड़े समय पहले इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा रहा था, यही यूएस जो कि भारत के रशिया से तेल के लेके इंपोर्ट के ऊपर लगातार क्रिटिसिज्म दे रहा था और कह रहा था कि हम आपको पनिश करेंगे। अब इसी यूएस के भारत साथ में खड़ा रहे जब ईरान से कॉन्फ्लिक्ट है। केवल चाइना के सामने खड़े रहने से कुछ नहीं होगा, ये दे आर सेइंग लिटरली आप यहाँ पर देख सकते हो। मतलब भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को छोड़े और यहाँ पर यूएस के साथ में जाके खड़ा हो जाए, क्योंकि यूएस जो है वो हर समय पे, अब अगर भारत का इतिहास आप उठा लो, हर समय पर यूएस जो है वो हमेशा ईरान के साथ खड़ा रहा है, इसलिए इंडिया को भी अभी खड़ा रहना चाहिए। तो इस तरीके का मेल्टडाउन जो है ना वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। मतलब वही कि अगर पूरा के पूरे सारी चीज़ अच्छी हो रही है तो उसके अंदर ना बताना है कि एक टिप्की देखो, ये वाली टिप्की तो गलत है ना, उस तरीके की चीज़ें जो है वहाँ पे वेस्टर्न मीडिया अब करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो यूएस की और वेस्ट की पूरी पॉलिसी है अलाइनमेंट की वो फेल होते हुए दिखाई दे रही है। आज के समय पर पूरे विश्व के अंदर एनर्जी इनसिक्योरिटी क्रिएट हो रही है और इंडिया के अंदर एनर्जी सिक्योरिटी फार मोर बेटर है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। तो वो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब जब एनर्जी सिक्योरिटी की बात आ ही रही है तो एक और न्यूज़ की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। बांग्लादेश के अंदर चलो, बांग्लादेश के अंदर यूनिवर्सिटीज़ लिटरली शट डाउन हो चुकी हैं बिकॉज ऑफ द फ्यूल शॉर्टेज, क्योंकि फ्यूल की कमी बांग्लादेश के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एंड ये वही बांग्लादेश है जो थोड़े समय पहले इंडिया को इलेक्ट्रिसिटी के लिए धमकियाँ दे रहा था, कह रहा था हम आपकी बिजली नहीं लेंगे,
ये वही बांग्लादेश है जो कि इंडिया आउट कैंपेन चला रहा था। भारत के खिलाफ जो नारे हैं वो इनके द्वारा लगाए जा रहे थे। इवन इनके द्वारा भारत के प्रधानमंत्री को मारने की घोषणाएं जो है वो की जा रही थी। इनके लीडर जो है वो चाइना के अंदर जाके नॉर्थ ईस्ट को कट करने की बात जो है वो करके आ रहे थे। तो इस तरीके की चीज़ें आपको बांग्लादेश के अंदर देखने को मिल रही थी। आज यही बांग्लादेश जो है वो फ्यूल शॉर्टेज से गुजर रहा है। और ये किसके पास भीख मांग रहा है पता आपको? लिटरली आप देखोगे इंडिया के पास रिसेंटली भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के सेक्रेटरी के द्वारा इस बात को यहाँ पर खुलासा किया गया है। refined petroleum products, especially from the government. We have received a request from the government of Bangladesh for supply of diesel, which is being examined. Given our people-centric and development-oriented approach to relations with Bangladesh, we have been supplying diesel from Numaligarh refinery since 2007 through various routes, which includes waterways, rail, and later through the India-Bangladesh friendship pipeline. A sale purchase agreement was signed in October 2017 between Numaligarh Refinery and Bangladesh Petroleum Corporation for supply of high-speed diesel on mutually agreed terms. It bears mention that while diesel exports to Bangladesh have largely continued since 2017, India's refining capacity, our own requirements and diesel availability will be factored in while taking decisions. In addition, सो आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो बांग्लादेश और भी कई सारे देश जैसे श्रीलंका है, मालदीव्स हैं, दे आर आस्किंग फ्यूल फ्रॉम इंडिया एंड इंडिया विल सप्लाई। ऑब्वियसली बांग्लादेश को लगभग 500 टन तक की डीजल जो है वो भारत सप्लाई करने वाला है बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्ग टर्म डील। बट यहाँ पर एक मेजर क्वेश्चन मार्क बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी उठता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है इसे मैं शुभेच्छा डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। इसके अलावा अगर आपको जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो न्यूज़ आती हैं उनकी रेगुलर अपडेट चाहिए तो आप पाथफाइंडर चैनल के ऊपर जुड़ सकते हो, मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हो। इसके अलावा UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, अनअकैडमी के ऊपर आप लोग जुड़ सकते हो जहाँ पर आपको कंप्रिहेंसिव UPSC IAS की तैयारी कराई जाएगी, लाइव क्लासेस दी जाएंगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के सबसे कम रेट के अंदर। और आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो रिसेंटली ऑफर जो है वो वैलिड है। SRC10 कोड लगाना, उसके बाद आपको 60% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा और सब्सक्रिप्शन के ऊपर भी डबल वैलिडिटी जो है वो प्राप्त हो जाएगी। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो आपको यहाँ पर जो जगह दिखाई दे रही है यह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जो कि लगभग 33 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी है। यहाँ पर आपको ईरान दिखाई देगा, यह है UAE, यह है कतर, यहाँ पर बहरेन है, यहाँ पर सऊदी अरेबिया है। इन सब का जो तेल बनेगा, जो भी ऑयल ये लोग निकालेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे वो कहाँ से भेजेंगे? ऑब्वियसली इस पर्शियन गल्फ से। इस पर्शियन गल्फ से होते हुए ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ही एकमात्र रास्ता है जिसके जरिए ये एशिया के अंदर तेल भेज सकते हैं। बट रिसेंटली क्या हुआ, जब से ईरान के ऊपर स्ट्राइक हुई है उसके बाद ईरान की जो IRGC है उनके द्वारा ऑफिशियली ये कह दिया गया है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर रहे हैं, किसी को भी यहाँ पर निकलने की अनुमति नहीं है। जिसके बाद दुनिया का 20% ऑयल और 19% LNG यहाँ पर स्टक हो चुकी है। और इसकी वजह से रशिया जो है उसका ऑयल का एक्सपोर्ट तेज़ी से बढ़ रहा है। यूरोपियन कंट्रीज जो अभी तक रशिया के ऑयल के ऊपर बैन लगा रही थी, सैंक्शंस लगा रही थी, अब वो रशिया के ऑयल के खरीदने के लिए आतुर हो रही हैं। यूरोपियन कंट्रीज के अंदर ऑयल को लेके इनसिक्योरिटीज क्रिएट हो रही है। जापान के अंदर ऑयल क्राइसिस आ रहा है, भारत के आसपास वाले देशों के अंदर ऑयल क्राइसिस आ रहा है। बट इस बीच में भारत के अंदर क्या हो रहा है? भारत के अंदर बन रही है होली। भारत के अंदर लोग जो हैं वो अभी भी जा रहे हैं और LNG LPG की टंकी जो है वो उठा उठा के लेके आ रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब इस बीच में ना भारत के अंदर 2 बड़े डेवलपमेंट हुए। पहला डेवलपमेंट जो कि डिप्लोमेटिकली भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था वो था वॉशिंगटन के द्वारा, US के द्वारा भारत को रशिया के तेल को लेने के लिए 30 दिन की अनुमति जो है वो दे दी गई, यानी कि 30 दिन का सैंक्शन वेवर दिया गया। कई सारे लोग ये कह रहे थे कि अगर अमेरिका हम लोगों को अनुमति दे रहा है तो क्या इंडिया सोवेरन है क्या? ये सारी बातें ना बेटा व्हाट्सअप पे ही अच्छी लगती है, असली दुनिया के अंदर ये इतनी अच्छी नहीं लगती। ये अधूरा सच है कि अमेरिका ने हमें वेवर दिया। बेसिकली इंडिया उसके पहले भी US से ऑयल खरीद रहा था। बट क्या हुआ कि US के द्वारा सेकेंडरी सैंक्शन अनाउंस किए गए। सेकेंडरी सैंक्शन का मतलब ये है कि जो कंपनी रशिया से तेल खरीदेगी
उस कंपनी के ऊपर भी सैंक्शंस लग जाएंगे। तो फिर बिजनेसमैन ने जनरली रशिया से तेल लेना कम कर दिया था, बंद नहीं किया था। जो तेल हम लोग 2 मिलियन बैरल तक लेते थे पर दिन का, वो कम होके 1 मिलियन बैरल पे आ चुका था, यानी कि लेना कम कर दिया था, बंद नहीं किया था। सो इंडिया वॉज सोवेरेन, बट स्टिल अमेरिका के सैंक्शंस का असर इंडिया के ऑयल के इंपोर्ट के ऊपर पड़ रहा था। तो क्योंकि वो असर जो है ना वो रिसेंटली पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर सैंक्शन वेवर जो है वो दिया गया है। तो इस बात को बिल्कुल क्लियर अपने दिमाग के अंदर रखना कि यहाँ पर यूएस ने हम लोगों को अनुमति नहीं दी है। हम पहले ही तेल ले रहे थे, बट यूएस के वेवर के बाद जो कंपनियां हैं वो खुल के तेल ले पाएंगी, और इसका असर भी हुआ। 20 मिलियन बैरल का तेल जो है वो भारत ने अभी सिक्योर कर लिया है, क्योंकि ऑब्वियसली सेफ्टी जो है वो यहाँ पर क्लियरली देखने को मिल रही थी। दूसरी तरफ तेहरान, ईरान, जो कि दूसरी पार्टी है, अमेरिका के अपोजिट पार्टी है। इंडिया के रिलेशन तेहरान यानी कि ईरान से ही बहुत बढ़िया है। और आप सब लोग जानते हो ईरान ने क्या किया हुआ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, जिसके कारण से तेल जो है वो वेसल्स जो है वो वहाँ पर अटकी हुई हैं। भारत की भी लगभग 28 वेसल्स जो है वो यहाँ पर अटकी हुई थी, जिसके कारण से कई सारे सवाल जो हैं वो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर उठ रहे थे। भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से एक बड़ा स्टेटमेंट आता है। कहा जाता है कि भारत की मिनिस्ट्री के रिसेंटली ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ में बातचीत हो चुकी है, और अब इंडिया के वेसल्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बिना एस्कॉर्ट के सेफ पैसेज, न केवल पैसेज बल्कि सेफ पैसेज जो है वो प्रोवाइड कर दिया गया है। हालांकि IRGC के द्वारा और ईरान के द्वारा शुरुआत में इस बात को डिनाई किया गया। बाद में ईरान के खुद के एम्बेसडर ने इस बात को माना कि हाँ, पैसेज जो है वो सेफली भारत को दिया गया है, और इसका प्रूफ भी ग्राउंड लेवल पे देखने को मिला, क्योंकि ईरान से कई सारे जो जहाज हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के यहाँ पे अटके हुए थे वो इंडिया की तरफ आते हुए दिखाई दिए, जिसके अंदर आपको शेनलोंग, सुएजमैक्स, पुष्पक, परिमल ये वेसल्स देखने को मिलेंगी, और भी कई सारी वेसल्स जो हैं वो अभी रास्ते में है जो इंडिया के अंदर आती हुई दिखाई देंगी। ये क्लियरली भारत को एक ऐसी पोजीशन के ऊपर लाके खड़ा कर दिया गया है जहां पर भारत की एनर्जी सिक्योरिटी काफ़ी हद तक सिक्योर है, और ये इस वजह से है क्योंकि भारत ने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को अपनाया है। मतलब भारत जब भी युद्ध होता है या जब भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, हम किसी की साइड नहीं लेते, हम अपनी साइड लेते हैं। मतलब इंडिया के जो पर्सनल इंटरेस्ट है हम उनको सर्वोपरि रखते हैं। जिस तरीके से अमेरिका लगता है, जिस तरीके से रशिया लगता है, उस तरीके से हम दूसरे देशों की तरह नहीं करते, दूसरे चापलूस देशों की तरह नहीं करते, जहां पर आप देखोगे जर्मनी या यूरोपियन कंट्री के लड़ाई किसी और की हो रही है और ये वहां पर बीच बीच में जाके कूदते रहेंगे। उस तरीके की चीजें जो है वो इंडिया को यहाँ पर नहीं करनी पड़ती, और उसकी वजह से भारत को बेनिफिट भी प्राप्त होता है, और वही बेनिफिट जो है वो आपको यहाँ पर साफ रूप से दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। अब भारत की इसी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी से हमेशा से वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो परेशान रहा है, क्योंकि उनको तो साइड चाहिए ना, उनको सपोर्ट चाहिए, और वो सपोर्ट जो है वो इंडिया जैसी कंट्री का मिल जाए तो फिर तो बात ही अलग है, क्योंकि इंडिया जो है वो लगभग 17% आबादी है। और अगर मैं कहूँ सोशल मीडिया के ऊपर तो इंडिया की प्रेजेंस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। लिटरली पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस आपको इंडिया की देखने को मिलेगी। अगर इंडिया कोई नैरेटिव क्रिएट करना चाहता है, इंडिया कैन डू इट, लिटरली इंडिया कैन डू इट, एंड वो बिल्कुल से सोशल मीडिया के ऊपर लगभग सबको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ें देखने को मिलती है। इसी कंडीशन में वेस्टर्न वर्ल्ड को हमेशा समस्या रही है भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी से, हालांकि रशिया को नहीं रही, इस वजह से हमारे रशिया से संबंध अच्छे रहे। अब ये जो पॉलिसी है ये ओवरऑल रूप से लॉन्ग टर्म और सक्सेसफुल देखने को मिल रही है। कई सारी वेस्टर्न कंट्रीज भी अब इंडिया की इसी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को फॉलो करते हुए दिखाई देती है, बट उसके बावजूद भी जो वेस्टर्न मीडिया है उसकी वो पुरानी आदत अभी तक छूटी नहीं है। वेस्टर्न मीडिया अभी मेल्टडाउन के अंदर है कि भारत को दोनों तरफ से तेल मिल रहा है, तो अब भारत जो है वो ईरान को क्रिटिसाइज कैसे करेगा? भाई हमको नहीं कर रहा, हमको हमारी एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो ज़्यादा जरूरी है। हम हमारी एनर्जी सिक्योरिटी से खुश हैं, हमको तेल मिलता रहे, हम बहुत ही खुश हैं। जिस तरीके से अगर डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के अंदर घुस के तेल के लिए कुछ भी कर सकता है ना, डेमोक्रेसी की, कम्युनिज्म की, कैपिटलिज्म की, इन सब की वारा बजा सकता है, जिस तरीके से ईरान के अंदर वो जाके अटैक कर सकता है, ठीक उसी तरीके से इंडिया तो केवल यहाँ पर अपनी डिप्लोमेसी का प्रयोग कर रहा है। यहाँ पे कोई हार्ड पावर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं हम लोग, केवल डिप्लोमेसी और सॉफ्ट पावर का प्रयोग करके हम हमारे ऑयल को और हमारे लोगों की एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर कर रहे हैं। क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी एक छोटा शब्द नहीं है दोस्तों, एनर्जी सिक्योरिटी लिटरली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप एक बार इमेजिन करो, आपके घर में अगर 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 खुदा ना खास्ता ऐसा हो 24 घंटे के लिए लाइट चल जाए, क्या आप सस्टेन कर पाओगे? आपके फ़ोन डिस्चार्ज हो जाएं, आपके घर की लाइट जो है वो बंद रहे, गर्मी का मौसम है, गर्मी लगे। इतना ही नहीं, आपको गाड़ी की सुविधा भी ना मिले क्योंकि उसके अंदर पेट्रोल या डीजल नहीं डल पा रहा है, उसकी शॉर्टेज हो जाए,
क्या आपका जीवन संभव है? इतना ही नहीं, देश के अंदर जो जितने भी बिजनेस चलते हैं ना, ये सब एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर एनर्जी नहीं मिलेगी तो बिजनेस नहीं चलेंगे, इकोनॉमिक जो पूरा डेवलपमेंट है वो क्रैश हो जाएगा। और ऐसी कंडीशन के अंदर फिर पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी क्रिएट होंगी। यानी कि एनर्जी सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए और पॉलिटिकल सिक्योरिटी के लिए भी, और इवन इंडिविजुअल की सिक्योरिटी के लिए भी। अगर मैं आपसे कहूँ एक रोड है जहाँ पर लाइट नहीं है, रात को जाना है, आप जाओगे? सिक्योर फील नहीं करोगे। पर वहीं स्ट्रीट लाइट होगी तो सिक्योर फील करोगे। तो इसलिए एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इंटरलिंक्ड है दूसरे प्रकार की सिक्योरिटी से। इसी वजह से यहाँ पर इंडिया जो है वो एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए पहले ध्यान दे रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है दोस्तों। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SR10 कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके अलावा आगाज़, प्रारंभ और सुमित बैच हम लोगों की शुरू हो चुकी है, इसके ऊपर आप ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।